Welcome to the next chapter of physics, chapter 2, magnetic effects of electric current. So in chapter 1, we studied everything about current electricity. But current electricity is a topic which is incomplete without studying the effects of electric current. And one of the prominent effect of electric currents is magnetic effect. So in this chapter, we are going to focus on magnetism, which is related with electricity. But before studying magnetism related with electricity, we have to study magnetism alone. We have to understand what are magnets. Now, you must have studied about magnets in um, class 8th, I believe, 7th or 8th. So you know what is a magnet, right? But in this chapter, we are going to take it further. We are going to introduce many more new terms associated with magnet and try to understand the phenomena of magnetism in a deeper detail. So, see, one effect of electric current which we studied in last chapter was heating effect of electric current. But in this chapter, we are more interested in studying the magnetic effect of electric current. So, whenever there is a current carrying conductor, there is always a magnetic field around it. Okay, this was discovered maybe, in early 19th century or 18th, early 19th century, yes. But this magnetism was related to electricity. Before that also, magnetism was existing. In fact, magnetism was discovered more than 2500 years ago from today. So maybe 500 BC. Yeah. Earlier, magnets were made naturally from naturally occurring substances called lodestone. Lodestone was a mineral which was used to make magnets. Lodestone. Remember lodestone. So, lodestone is nothing but black ore of iron, that is Fe3O4. Ferric oxide or Fe3O4, whose one of the black ore is known as lodestone. Now it is known as magnetite. We have given it a new name, magnetite. So these naturally occurring substances are weak magnets and have little practical applications. Therefore, artificial magnets are made of desired shape and size, which are commonly used in everyday appliances. These magnets are used in refrigerators to keep the doors closed, in toys, magnetic compass needle, uh, dip circle needle. Now, you might be wondering what is a dip circle needle. Dip circle needle you are going to study in class 12th, where you are going to study magnetism in detail. It shows uh, the angle of magnetic axis at a particular place. The angle of magnetic axis at a particular place. Now it might sound little fancy, but you will understand what is magnetic axis. Like we have geographical axis, we also have a magnetic axis concerned with our planet Earth. So dip circle needle tells you the angle of that magnetic axis at a particular place. So that is also made by using normal artificial magnets. Magnetic substances are used to make compact discs, CDs. Now CDs and DVDs. So now they are not in use anymore, but yeah, magnets are still very useful. Floppy disks, they were used earlier. See, now we have USB pen drive, and we also have wireless data transmission available. Audio tapes, right? We don't have audio tapes anymore. We directly stream music from online, or we directly record in digital media. So these were some, you can say analog medias on which, audios were recorded, you can say 20 years ago. And magnet was a very important application over there in these kind of, you know, appliances. Okay, what are the properties of magnet? Magnet, the first property of magnet is attractive property. It attracts materials like iron, cobalt, and nickel. Attraction is maximum
at the ends called poles of the magnet. In the first figure, N is North Pole and S is South Pole. As you can see, figure number 1, yeah, over here. So this is the North Pole and this is the South Pole. So all the magnets have two poles and attraction is maximum at the ends of the poles. Okay, North and South Pole have maximum attraction. When a bar magnet is suspended by unspun thread, it orients itself in north-south direction. Unspun thread means a thread which is straight, which is not curved or spun. You know, a straight thread. If you take a straight unspun thread and tie a magnet with it and suspend that magnet freely, it orients itself, it locates itself, it orients itself in north-south direction. It points in north-south direction. So that is a directive property of magnet. Okay, so the first property is called attractive property. Attractive property. The second property is called polarity. The magnet has got two poles and the attraction is maximum at the poles. The third property is called directive property. Directive. Please take notes, okay? You must take notes for each and every chapter. So third property is directive property. When two magnets are brought close together, like poles repel and unlike poles attract each other. When two magnets are brought close together, like poles repel and unlike poles attract each other. So this is the attraction or repulsion between the poles. Okay? The fourth property is known as attraction among unlike poles and repulsion among like poles. Okay, so the like poles, south and south, are known as like pole. Like means same. Okay, they will always repel each other. North and north are also like poles, so they will repel each other. But the unlike poles, south and north or north and south, they will always attract each other. Okay, so this is also the property of poles, very important property of magnet. Okay, so these are the properties of magnet. Now we will study more about magnetism. That is, the first concept of magnet is magnetic field. The first concept associated with magnet is known as magnetic field. So what is magnetic field? Please note down the definition. The space around a magnet where its influence, that is attraction or repulsion, can be experienced is called the magnetic field of that magnet. The space around a magnet where its influence, attraction or repulsion can be experienced is called magnetic field of that magnet. So this space around the magnet, you cannot see it. It's invisible. It is just empty space. There are no markings, you know, on this space. If you have a magnet, there is an invisible space around it where the influence of the magnet can be experienced. And this space, this invisible space, is known as magnetic field. So theoretically, the magnetic field, you know, extends up to infinity. But as far you go from a magnet, the magnetic field becomes weaker and weaker. So magnetic field is stronger near the magnet and more so near the poles. So around the poles of magnet, the magnetic field is stronger. But as you go towards the center of the magnetic field is there, but it is not so strong. And as you go away from the magnet in any direction, from away from poles or away from center, the magnetic field will become weaker and weaker. So it extends up to infinity. See, in science, what is the meaning of infinity? Infinity. Infinity means very far away. This is the symbol of infinity. Very far away. Okay, how far? Okay, that is you can say arbitrary. This the word, you remember the word arbitrary. Arbitrary means it is not at a fixed distance. It is some random distance far away.
but very far away. Like if you have a very small magnet, this infinity or very far away or arbitrary infinity distance could be, maybe you can say your the distance of the area covered by your टेबल टॉप. तुम्हारा टेबल है, ठीक है, तुम्हारे टेबल के बीच में मैंने एक छोटा सा मैग्नेट रखा, तो वो जो टेबल के एजेस है वहां तक ही उसका मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा. So that's an arbitrary infinity distance for that small magnet kept at center of your table. उसके बाहर उसका मैग्नेटिक जो इफेक्ट है, वो इन्फ्लुएंस है, वो काम नहीं करेगा. बट अगर मैं बड़ा मैग्नेट ले लूँ तो फिर एक रूम जितना डिस्टेंस उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. रूम के बाहर सब इन्फिनिटी. ठीक है. सो इन्फिनिटी इज दैट डिस्टेंस, ठीक है, विच इज एन आर्बिट्री डिस्टेंस, विच इज अ रैंडम डिस्टेंस, विच इज एन हाइपोथेटिकल डिस्टेंस. और एक वर्ड मैं दे रहा हूं तुमको, हाइपोथेटिकल. तुम सोच रहे होगे ये फिजिक्स की क्लास में इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा है? बिकॉज दीज ऑल आर टेक्निकल वर्ड्स रिलेटेड विद फिजिक्स, और इनका काफी यूज होता है फिजिक्स में. हाइपोथेटिकल, ठीक है. आर्बिट्री, हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल मतलब नॉट रियल, हाइपोथेटिकल थियोरेटिकल ज्यादा बोल सकते हैं. आर्बिट्री वही होता है, मीनिंग वही होता है. सो इन्फिनिटी एक ऐसा आर्बिट्री या फिर हाइपोथेटिकल या फिर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो जिसका मीनिंग होता है वेरी फार अवे. तो जितना बड़ा मैग्नेट उतना डिस्टेंस पे उसका मैग्नेटिक फील्ड फैला रहेगा. बट सबके लिए, हर एक साइज के मैग्नेट के लिए हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड of any magnet is spread up to a distance of infinity from that magnet. Infinity means very far away. Now you understand? ठीक है. तो हम लोग अभी एक एक्टिविटी करके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग प्लॉट करेंगे. ये देखो, ये एक्टिविटी में हमने एक बार मैग्नेट लिया है. दिस बार मैग्नेट इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, ठीक है, और ऑन अ कार्डबोर्ड. ठीक है. और यू कैन से, आई एम सॉरी, नॉट ऑन अ कार्डबोर्ड बट बीनीथ अ कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड के नीचे बार मैग्नेट को रखना है. ठीक है. यहाँ पे व्हाइट पेपर लेके वो लोग बोल रहे हैं रखने के लिए, तुम कार्डबोर्ड भी ले सकते हो. तो एक बार मैग्नेट लो, फेयरली स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, और उसको टेबल पे रखो और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखो. कार्डबोर्ड इतना थिक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल थिकनेस वाला कार्डबोर्ड चलेगा. ठीक है. वो कार्डबोर्ड के ऊपर यू हैव टू स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स. Iron filing. What is an iron filing? So iron filing are pieces of iron which are very very small, thin needle like iron pieces, very thin, very small. लेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं होती आयन फाइलिंग्स की. ठीक है. तो आयन फाइलिंग्स तुम बोलोगे कहाँ मिलेगा, तो यू कैन गेट इन एनी साइंस शॉप, लाइक एनी स्टेशनरी शॉप. आयन फाइलिंग्स वो लोग प्रोजेक्ट के लिए देते हैं. ठीक है. इफ यू वांट यू कैन डू दिस एट होम. No need of doing this project at home. You can also see some YouTube videos. The best part about YouTube videos is you can practically see how a thing happens, without even buying those project materials. कोई जरूरत नहीं है सब इन्वेस्टमेंट करने की. हाँ, अगर स्कूल में बोला है कि you have to do this project and show it, हाँ तो तुम खरीदो ये सब. But if you want to understand, just for the sake of understanding, no need to invest in such materials which are required for projects. So basically iron filings are small pieces of iron which are basically sprinkled on that cardboard. और वो कार्डबोर्ड पे जैसे ही तुम स्प्रिंकल करोगे, they will gather above the area beneath which there is this magnet. And सबसे ज्यादा iron filings होंगे near the poles of the magnet. And all the iron filings will surround the magnetic area or the area where the magnet is placed in a particular pattern. तो तुम्हें एक पैटर्न दिख रही होगी यहाँ पे. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पैटर्न है. यहाँ पे सारे आयन फाइलिंग्स चिपके हुए, पोल्स पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, ये हमें पता है. एंड देन द आयन फाइलिंग्स आर लाइक मेकिंग दीज काइंड ऑफ लाइन्स. यू सी, ऐसे लाइंस बन रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. और यहां भी देखो, इफ यू सी द लाइंस आर एक्सटेंडिंग, ऐसे लाइंस बन रहे हैं. तो ये आयन फाइलिंग्स बेसिकली दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट विच वी कैन सी ओवर हियर. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट वेयर द आयन फाइलिंग्स
position themselves in a particular manner. अगर तुम ये मैग्नेट हटा देते होगी तो क्या होता है, मैग्नेट हटा दो और फिर आयन फाइलिंग्स को वापस वो जो कार्डबोर्ड है उसको थोड़ा सा ऐसा टैप करो, टैप करोगे तो आयन फाइलिंग्स नॉर्मल हो जाएगी, रैंडमली सिचुएट हो जाएगी, ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो पैटर्न इंडिकेट्स दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट एंड इट्स शेप इज ऑल्सो पिक्यूलियर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा, वी आर गोइंग टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच मेक अप द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किससे बना है, what makes up the magnetic field lines, right? So we are going to represent this magnetic field of any magnet with the help of magnetic field lines. So what is a magnetic field line? Magnetic field line is an imaginary line. It originates from north pole से लाइन शुरू होती है and ends itself on the south pole. तो ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स होती है, इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक हाईलाइट दे रहा हूं पहले कि तुम समझ जाओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। जो लाइंस मैंने यहाँ पे प्लॉट की है, मुझे दिख रही है, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब हम उसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हमें एक कंपास चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करना है? सो बेसिकली नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे मैंने मैग्नेट का मार्क करके रखा है। अब मुझे कंपास लेना है और वो कंपास को नॉर्थ पोल के ऊपर रखना है। यहाँ पे ये कंपास की पोजीशन है। जैसे ही मैं कंपास को यहाँ पे रखूंगा, जनरली कंपास का यूज क्या होता है, अगर कंपास को मैंने किसी भी जगह पे रखा तो कंपास किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है? तो कंपास पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑलवेज, क्योंकि वो हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उससे इन्फ्लुएंस होकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कंपास अपने आप को सेट कर लेता है। सो इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर कोई दूसरा मैग्नेट है उसकी विसिनिटी में, तो कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लॉट पॉइंट नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज द कंपास, द नीडल ऑफ द कंपास विच इज मैग्नेटिक विल बी इन्फ्लुएंस्ड by the stronger magnet in its vicinity. Please understand my words. I'm using very technical language over here. The magnetic needle of the compass. कंपास के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल। ये जो मैग्नेटिक नीडल है, दैट मैग्नेटिक नीडल विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड. This magnetic needle will be influenced by a stronger magnetic field of the magnet present in its vicinity. Vicinity मतलब area. I'm using the word vicinity. It's a very important word. Vicinity means its area, the area around it. ठीक है। तो इसके ये जो मैग्नेटिक नीडल मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा है, उसकी विसिनिटी में स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? ये वाला मैग्नेट या अर्थ का मैग्नेट? ऑफ कोर्स ये वाला मैग्नेट, क्योंकि ये मैग्नेट उससे इतना नजदीक है। तो दिस मैग्नेट विल नाउ नॉट पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ the earth's magnetic field, but it will point in the direction of magnetic field of this particular compass, this particular magnet, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये छोटे वाले कंपास का नीडल पॉइंट करेगा। सो यहाँ पे देख रहे हो रेड एरो, वो रेड एरो क्या है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैग्नेट। और ये रेड एरो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और उसका जो टेल है वो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? टेल के ऊपर एक पॉइंट बनाएंगे और हेड के ऊपर एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो हमें दो पॉइंट मिल गए। वैसे ही अब मैं कंपास को उठा के यहाँ पे रखूंगा, जैसे इन सच अ पोजिशन दैट द टेल ऑफ मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास पॉइंट्स or is located above the mark I made initially with the initial position of compass. तो इसका टेल अभी यहाँ पे इस पोजीशन पे आ रहा है और इसका हेड कहाँ पे? वहां पे मैं और एक डॉट बनाऊंगा। अब वापस कंपास को उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा, इसका टेल पीछे वाले डॉट पे और आगे जहां पे हेड पॉइंट करेगा वहां पे और एक डॉट बनाऊंगा। ऐसे अगर मैं सारे डॉट बनाते गया तो मुझे ऐसे सारे अलग 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 डॉट मिलेंगे और वो सारे डॉट्स को अगर मैं कनेक्ट करूं तो यू नो व्हाट आई हैव गॉट? आई हैव गॉट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ दिस बार मैग्नेट। मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यू कैन से विजुअलाइज कर लिया। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको प्लॉट करूं तो मुझे एक लाइन मिल सकती है।
अब ये लाइन क्या है? इट इज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। ये नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे एंड होती है। ठीक है, नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे एंड होती है। क्लोज्ड है, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है। क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। So this is how you find the shape of magnetic field lines produced by a bar magnet. अभी समझ में आया तुमको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इन डिटेल। ओके, थोड़ा ध्यान से सुन लेना इसको। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू शो मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन। इमेजिनरी लाइंस होती है, ऐसे रियल लाइंस होती नहीं है। इमेजिनरी लाइंस हम लोग इसलिए ड्रॉ करके समझते हैं बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन मैग्नेट। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। मैंने तुम्हें पहले भी 2-3 बार बताया है। एंड दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल डायरेक्ट होती है आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्ट करती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ पे जाती है। ठीक है। थर्ड, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक पॉइंट ले लेता हूं और उस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन निकालना है, तो यहां पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट। टेंजेंट पता है तुम्हें क्या होता है? सपोज ये सर्कल है, तो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट, सर्कल के सर्कमफरेंस पे किसी भी एक पॉइंट पे अगर एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, देन इसको टेंजेंट बोलते। ठीक है, तो यहां पे ये टेंजेंट क्या दिखाता है? टेंजेंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे डायरेक्टेड है? तो इस डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। ठीक है, magnetic field lines are closer together or crowded in the region where the magnetic field is stronger, that is at poles. poles पे सारी magnetic field line crowded होती है और center part या दूसरे part पे magnetic field line separated होती है, widely separated होती है। तो जहां पे close together होती है magnetic field lines, वहां पे magnetic field stronger होता है, और जहां पे far apart होती है magnetic field lines, वहां पे magnetic field थोड़ा weak होता है। फिफ्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे इसका रीजन दिया है क्यों। अब देखो ये वाला डायग्राम, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है, पैरेलल है और इंटरसेक्ट नहीं कर रही। बट यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दोनों, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो तुम बोलोगे इंटरसेक्ट करे नहीं कर सकती, इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ बहुत सिंपल है। अगर यहां पे मैंने कंपास रखा, ठीक है, कंपास का नीडल या तो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा विच इज टेंजेंट टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या तो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा विच इज टेंजेंट टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या कंपास की नीडल दोनों डायरेक्शन में एक साथ पॉइंट कर सकती है क्या? नहीं। सिंस द नीडल ऑफ द कंपास कैन नॉट पॉइंट इन टू डायरेक्शन एट वंस, हेंस वन ऑफ द फील्ड लाइंस विच इज प्लॉटेड इज रॉन्ग। इनमें से एक फील्ड लाइन गलत है, या तो ये या तो ये, कोई भी एक गलत है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों कभी एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका मतलब है उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इट विल नॉट पॉइंट इन टू डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, यहां पे लिखा भी है इसका रीजन, दिस इज बिकॉज if you place a magnetic compass at the point of intersection, it will orient itself only in one direction and not in two direction, and then hence we can say that magnetic field lines do not intersect each other. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। सो ये सारी प्रॉपर्टीज है हमने पढ़ ली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको याद कर लेना। यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्ट है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is always from north pole to south pole. मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। बट एक्चुअली रियल कॉन्सेप्ट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, देखो यहाँ पे दिखाया है, और अंदर
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ पोल है, बाहर है नॉर्थ टू साउथ पोल, ये याद रखना प्लीज। ठीक है, ये तुम्हें मैं होमवर्क में देने वाला हूं। चलो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। द मेन टॉपिक ऑफ टुडे इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। So, magnetic effect of current was accidentally discovered by H.C. Oersted in 1820. Okay, मैंने तुम्हें बोला था अर्ली 19th सेंचुरी में, बिल्कुल सही बोला था। सो एक्सीडेंटली हुआ था ये डिस्कवरी। H.C. Oersted, ऑर्स्टेड नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये जो ऑर्स्टेड, H.C. ऑर्स्टेड, इनका फुल नाम है हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। ओ पे ऐसा एक लाइन ऐसा फाई जैसा दिखता है, वो ग्रीक लेटर जैसा दिखता है, इट्स अ ग्रीक लेटर डेफिनेटली। अच्छा, ये हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड एक डैनिश फिजिसिस्ट थे, डैनिश फ्रॉम डेनमार्क। ओके, डेनमार्क। तो मैंने ये जो नाम है इनका ऑर्स्टेड, जिसको मैं बोलता हूँ, इसको लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कुछ लोग इसको अर्स्टेड भी बोलते हैं, अर्स्टेड, ओ को साइलेंट करके अर्स्टेड बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको ऑर्स्टेड भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको अस्टर्ड बोलते हैं, अस्टर्ड, 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 ओ वेरी फैंसी। ओके, सो तुम इसको जैसे तुम्हें चाहिए, ओर्स्टेड, एस्टेड, एस्टेड, ओस्टेड, ऑयस्टर मत बोलना, ठीक है, रिस्पेक्ट करो यार। हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड बहुत ही महान फिजिसिस्ट थे। सो फर्स्ट टाइम ही डिस्कवर्ड कनेक्शन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले एक्चुअली, उससे पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट ब्रांचेस, बट अब आफ्टर मिस्टर सर हैंस क्रिस्टियन अर्स्टेड या ऑर्स्टेड ने जो डिस्कवरी की, जो उन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी वर कनेक्टेड एंड दे वर सीन एज द फिनोमेना which is basically originated due to the same from the same root, ऐसे बोल सकते हैं। सो ओर्स्टेड सर का एक्सपेरिमेंट क्या था वो पहले पढ़ लेते। So what he did was he brought a compass near current carrying conductor। एक वायर था जिसमें से करंट फ्लो हो रहा था, उसके नजदीक उन्होंने कंपास लाया एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्टेड व्हेन ही स्विच्ड ऑफ द करंट। ये डिफ्लेक्शन वापस नॉर्मलाइज हो गया, मतलब वापस जो मैग्नेटिक नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करने लगा। बट जैसे ही उन्होंने वापस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने दिया, तब मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाया। मीन्स he found that there is a connection between the flow of electricity, that is electric current, and magnetic field. There is a strong connection because whenever there was electric current, there was a change in magnetic field around the current carrying conductor, which produced its own magnetic field, which actually you can say it compelled the magnetic needle to point in its own magnetic field, in the direction of magnetic field of the current carrying conductor, rather than pointing in the direction of magnetic field of the earth. So why is this happening? Because whenever there is flow of electric current, there is a magnetic field associated with it. Now he did one more thing. He stopped the current and checked it. Then there was no magnetic field. So he proved that whenever there is flow of current, only then the magnetic field arises around the current carrying conductor. Also, he checked by reversing the direction of electric current. When he reversed the direction of electric current, the direction of magnetic field also got reversed, and he knew this by bringing the magnetic needle closer to the current carrying conductor, and now
the magnetic needle deflected in the opposite direction. Now the direction of deflection reversed. So this proved that there is a magnetic field around a current carrying conductor, and the direction of magnetic field depends on direction of flow of current. If the direction of flow of current is reversed, the direction of magnetic field also gets reversed. So this was the first experiment of Mr. Hans Christian Ørsted or Ørsted. Okay. So this is the requirement for the Ørsted experiment. There is this horizontal plane on which there is a circuit, a battery, a key, and a resistance. And as you can see, the same circuit is also extended in the vertical field. So circuit horizontal field में भी है, vertical field में भी. ठीक है? Now the north direction originally is here, but as soon as the current is on, the current pushes or compels the magnetic field to point in its own direction, the direction of magnetic field created by the current carrying conductor. Hence the direction of magnetic needle changes. So this shows that there is a magnetic field around a current carrying conductor, and the result of this the deflection and the result of this whole experiment can be remembered by the word snow. What is snow? Current flows from south to north. See, current is flowing from south to north here, right? The current is flowing from south to north. Then north pole of the needle deflects towards west. North pole of the needle here deflects towards west. You see this arrow? Towards west. This is west. When current flows from south to north, then needle deflect towards west. SNOW. Actually NO साथ में लिखना चाहिए because it depicts north. ठीक है, फिर से बताऊं. When current flows from south to north, the magnetic needle deflects towards the west. ठीक है. When the connection of the battery are reversed, the direction in the current in the wire flows from B to A, that is from north to south. In this case, the deflection of needle is towards the east. So if the current flows from north to south, the deflection of needle is towards the east. ठीक है, it looks like nose but it is not nose. ठीक है, बट हम लोग इसको नोज के तरीके से रिमेंबर तो कर सकते हैं. नॉर्थ टू साउथ द करंट फ्लोज टूवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, ये क्या है? साउथ टू नॉर्थ क्या है? ये है डायरेक्शन ऑफ करंट. नॉर्थ टू साउथ क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट. वेस्ट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ नीडल, द डायरेक्शन इन विच नीडल पॉइंट्स, मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स. ईस्ट क्या है? डायरेक्शन इन विच नीडल पॉइंट्स. अच्छा है ना रिमेंबर करने के लिए. ये इसको बोलते हैं नेमोनिक. नेमोनिक. मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर. तो अब हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है? यहाँ पे हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और वो कार्डबोर्ड के सेंटर में एक होल किया है, और वो होल में से हमने एक परपेंडिकुलर वायर पास किया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड. ठीक है, और हमने ये जो कार्डबोर्ड है उस पर कुछ आयन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया है. एज सुन एज द key is connected and the current starts flowing through this wire, the iron filings which are sprinkled on the cardboard, when the cardboard is tapped, they arrange themselves in circular concentric circles, circular pattern forming concentric circles, the center of which circle is the point through which the wire is passing through the cardboard. तो जहां से वायर पास हो रहा है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर बन जाता है, और वो
कार्डबोर्ड पे सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं. दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर नथिंग बट the magnetic field lines around a current carrying conductor. So please remember, around a current carrying conductor, the shape of the magnetic field is always in the form of concentric circles. इसको नोट कर लो प्लीज. मैं यहाँ पे लिखता हूं, around a straight current carrying conductor, around a straight current carrying conductor, the shape of magnetic field, the shape of magnetic field is in the form of concentric पता है ना क्या होता है? concentric सर्कल्स वो होते हैं जिसका एक ही सेंटर होता है, रेडियस अलग अलग होती है, जैसे यहां पे दिख रहे हैं. having center at a point through which, having center at a point on the cardboard through which the current carrying conductor is passing, through which the current carrying conductor is passing. ठीक है, तो ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का. मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि whenever magnetic field is examined around a straight current carrying conductor, the shape of the magnetic field is in the form of concentric circles having the center at a point on the cardboard through which the current carrying conductor is passing. ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है. वो ओरस्टेड भैया ने हमको समझा दिया था. ठीक है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन तो हमने यहां से समझ लिया, और उसका शेप कैसा होता है वो हमने ये दो एक्सपेरिमेंट से समझा. पहला एक्सपेरिमेंट ये था स्नो या नोज वाला एक्सपेरिमेंट, और दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था जिसमें हमने वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला शेप मिला हमें मैग्नेटिक फील्ड का. अब ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला शेप है, इससे हम लोग एक रूल को समझ सकते हैं. ये रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल. बहुत इंपॉर्टेंट रूल. तो ये रूल क्या बोलता है? तो सब लोग, अभी मैं तो देख नहीं पा रहा तुम लोग अपने राइट हैंड से क्या कर रहे हो अभी. आई एम श्योर कि कुछ सही चीज ही कर रहे हो, लिख रहे हो नोट्स. ठीक है, राइट हैंड को संभाल के रखो अपने, बहुत काम का राइट हैंड है. ठीक है, तो राइट हैंड क्या कर रहा है तुम्हारा अभी? उसको, राइट हैंड को फ्री कर दो अभी. ठीक है, कुछ भी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है. हाँ, पेन को पकड़ना है तो राइट हैंड को फ्री कर दो अभी. एंड इमेजिन टू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड. तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे राइट हैंड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग स्ट्रेट. ठीक है, थंब तुम्हारा स्ट्रेट पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ऐसे थम्स अप दिखाओ. ठीक है, अभी तुम अजीब लगेगा कि YouTube के वीडियो को देखे तुम थम्स अप किसको दिखा रहे हो, ये कुछ मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा दिखेगा. चलेगा, कोई बात नहीं, दिखाओ थम्स अप. ठीक है, समझ जाएंगे समझने वाले. जिसको फिजिक्स आता है वो तो समझ ही जाएगा. सो इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड विथ योर थंब स्ट्रेच्ड एंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. यहाँ पे लिखा है विथ योर थंब स्ट्रेट एंड पॉइंटिंग, स्ट्रेच्ड एंड पॉइंटिंग ये दोनों सेम है. इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को तुम्हें उस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है और पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. तो इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में कंडक्टर और करंट उसमें ऊपर की तरफ जा रहा है. देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स एनसर्कल द कंडक्टर, जिस डायरेक्शन में तुम्हारी फिंगर्स कर्ल हो रही है वो कौन सा डायरेक्शन है? वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का. इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb points in the direction of electric current, then the direction in which
the fingers encircle the conductor is the direction of magnetic field. वो होती है direction of magnetic field. ठीक है, so this is basically the right hand thumb rule. ये है तुम्हारा right hand thumb rule. समझ में आया तुमको? राइट हैंड थंब रूल से हमें क्या समझ में आता है? राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है कि विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैट करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा द फिंगर्स इन विच द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स एनसर्कल द कंडक्टर. अब तुम एक काम करो, थम्स डाउन दिखाओ राइट हैंड से. आई होप तुम राइट हैंड ही यूज कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से नहीं होगा ये. इसका नाम ही राइट हैंड थंब रूल है. लेफ्ट हैंड यूज मत कर लेना गलती से. ठीक है, नाउ इफ यू पॉइंट योर राइट हैंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज यू इमेजिन टू होल्ड योर current carrying conductor in your right hand such that your thumb points in the downward direction, then the direction of magnetic field now is in the direction in which your fingers curl or encircle the conductor. And you must observe that अगर तुम नीचे की तरफ अपने thumb को point कर रहे हो, the direction in which the fingers encircle the conductor reverses. अब fingers opposite direction में curl हो रही है. Now the fingers are curling in opposite direction. You understand? Since the fingers curl in the opposite direction now, we can say that the direction of magnetic field has reversed on reversing the direction of current. अगर मैंने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर लिया तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है वो डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है. सो ये प्रूव करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. ठीक है, और राइट हैंड रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं. अब देखो ये तुम्हारे सामने फिगर है. तुम ये जो लाइन है जहां से आई ऊपर की तरफ जा रहा है उसको ऐसा होल्ड करने की कोशिश करो, इमेजिनरी. ठीक है, तो फिंगर्स का डायरेक्शन देखो, क्या वो रेड एरोस के डायरेक्शन में फिंगर्स बेंड हो रहा है, कर्ल हो रहा है? यस. ठीक है, अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ मानता हूं तो फिंगर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली योर राइट हैंड थंब रूल which gives you the direction of magnetic field around a straight current carrying conductor. समझ में आया ये? चलो नेक्स्ट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब ये बात याद रखो तुम, ये मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, ये तुम्हें डेफिनेटली लर्न करना है, समझना है, बट ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में ना तो इसके न्यूमेरिकल्स है, ना तो इसका डेरिवेशन है, ना तो तुम्हें फॉर्मूला आएगा, कुछ भी नहीं है इसका. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोल रहा हूं ये लर्न करो. क्यों पता है? क्योंकि ये तुम्हें 12th स्टैंडर्ड में पूछा जाएगा. 12th में सेम चीज आने वाली है और ये तुम्हारे टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड है. ये कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ सिलेबस में नहीं है, टॉपिक में तो है ये. ठीक है, तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं, वी आर व्हाट वी आर स्टडिंग नाउ. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से इसको सुन लो, समझ लो और अपने पेरेंट्स के साथ भी इसको डिस्कस करो कि सर ने ऐसा ऐसा बोला हमको. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये जो मैं तुम्हें लेक्चर्स दे रहा हूँ, चाहे मैं क्लासरूम में दूं या वीडियोस में दूं, डजेंट मैटर. ठीक है, ये जो लेक्चर्स है इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग है कि तुम्हारा जो फाउंडेशन है उसको कॉन्क्रीट बनाना, उसको स्ट्रांग बनाना. ये तुम्हारे यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करवा रहा हूं मैं तुम्हें, समझ लो इस बात को. ये मैं तुम्हारी स्कूल के एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करवा रहा हूं मैं तुमको. ये बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल हो जाता है. स्कूल के एग्जाम के लिए मेरा सिलेबस सर ने पढ़ाया, ये शॉर्ट टर्म गोल के मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं ये सब में. मैं लार्जर पिक्चर देखता हूं, मैं बिगर पिक्चर देख रहा हूं अभी. इसलिए जो मेरा कंटेंट है, जो मेरे वीडियोस है, उसमें जो सारी चीजें डिस्कस हो रही है, दे विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन, नॉट मोमेंटरीली. कि आज मेरी 20 मार्क की टेस्ट है तो उसमें मेरे को 19 आया बिकॉज सर ने मेरे को सब इंपॉर्टेंट मार्क करवाया. ये बकवास में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं. तुम 19 नहीं, तुम 20 on 20 ला सकते हो मेरा लेक्चर सुनने के बाद. लेकिन अगर तुम्हारा फाउंडेशन वीक रहा तो प्रॉब्लम है. इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी टॉपिक तुम पढ़ो, तुम डिटेल में पढ़ो, तुम डेप्थ में जाओ, उसकी घुस जाओ उसके अंदर, और तुम्हें सारी चीजें उसके बारे में पता होनी चाहिए मेरा लेक्चर सुनने के बाद.
और उसके बाद मेरी एक्सरसाइज कर लो तो फाउंडेशन और पक्का हो जाएगा, उसके बाद मेरी टेस्ट दे दो तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। मतलब दीज ऑल थिंग्स आर लाइक अ चेन रिएक्शन, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इट्स नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी विच वी आर डूइंग ओवर हियर कि हाँ तुम्हारा बस सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, हो गया काम, दे दो मुझे फीस दे दो, खत्म हो गया काम। नहीं, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे। प्लीज ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो मेरी बात, और अपने पेरेंट्स को भी बताओ ये बात कि हमारा एम क्या है। व्हाट इज आवर एम हियर? इज आवर एम टेम्पररी, शॉर्ट टर्म एम्स पे काम कर रहे हैं हम लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट बना रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं। तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म के बारे में या मैग्नेटिज्म एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कहीं से भी, एग्जाम्पलर से पूछे, हॉट से पूछे, एनसीईआरटी से पूछे, एस चांद से पूछे, कोई भी बुक से उठा के पूछ ले, तुम्हें आंसर पता होना चाहिए और तुम प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स में आंसर लिख के फुल मार्क्स लाना चाहिए, और इसके लिए टाइम लगता है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में हमको टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर हम लोग प्रॉपर टारगेट करें, चलो हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके पढ़ोगे तो मेरा जो जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं दैट विल गिव यू प्रॉपर रिजल्ट। यूनिट टेस्ट को टारगेट करके पढ़ोगे तो यूनिट टेस्ट जैसी पढ़ाई होगी, याद रख लेना, दैट इज नॉट वेरी हेल्पफुल। ठीक है, वो 10% या 5% जो भी स्कूल वाले तुम्हें मार्क्स देते हैं उसके चक्कर में मत पड़ना। हमारा टारगेट बड़ा है, ठीक है, हमारा टारगेट लार्ज है। ठीक है, सो इट विल टेक टाइम फॉर मी टू गो थ्रू अ टॉपिक। एक एक लेक्चर तुमने देखा होगा, मेरे लेक्चर कंपेयर करो और तुम्हारे स्कूल के लेक्चर कंपेयर करो, कौन सा ज्यादा इंफॉर्मेटिव है ये तुम ही पता लगा सकते हो। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये तो खुलेआम मैं पब्लिक में बोल रहा हूं। देखो जाके स्कूल के लेक्चर्स को कंपेयर करो मेरे लेक्चर्स के साथ, दूसरे टीचर्स के लेक्चर कंपेयर करो। मैं कम इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता ना, मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो बहुत जरूरी है अभी। ठीक है, जो मुझे लगता है जरूरी है, जो मुझे लगता है तुम्हारे काम आएगी, वो इंफॉर्मेशन तुम तक पहुंचेगी डेफिनेटली, और तुम्हें वो पढ़नी ही है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, याद रखना 10th के सिलेबस में नहीं है ये, बट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो उस एटीट्यूड से पढ़ना। ठीक है, अगर किसी को अभी वीडियो स्किप करना है तो मैं तो तुम्हें रोक नहीं सकता, कर लो भाई स्किप। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें फ्यूचर में काम आ सकती है, तुम उसको स्किप कर रहे हो, ये याद रख के स्किप करना। ठीक है, सो इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने तुम्हें बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, राइट, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज दैट इमेजिनरी एरिया in which the effect of a magnet is visible, and this magnetic field turns out that it's a measurable quantity। हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? measurable quantity। magnetic field is a measurable quantity। so the strength of this magnetic field, the strength of this magnetic field at a point increases with the increase of magnitude of current flowing through the wire and vice versa। अगर मैं वायर से ज्यादा करंट फ्लो करवाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बी बढ़ जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बी, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है? बी। रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है? मैंने उसको स्क्रिबल कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है? बी। B is directly proportional to I। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट is directly proportional to the current flowing through the conductor। If more current flows through the conductor, greater or stronger will be the magnetic field at that point। If less current flows through the conductor, lesser or weaker will be the magnetic field at that point। ठीक है, the strength of magnetic field B decreases on increasing the distance of the point of observation from the wire। ये जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो कम होती है। कैसे कम होती है? अगर मैंने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिया तो। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस at which you are measuring the magnetic field from the wire। वायर से जितनी दूर रहेगा पॉइंट जहां पे तुम मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर रहे हो, उतना कम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस
at which the magnetic field is measured from the wire. तो ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 और नंबर 2 सेकेंड इक्वेशन को अगर कंबाइन करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक रिलेशन मिलेगा. ये रिलेशन क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I by R. ठीक है. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन सीधा वो लोगों ने रिलेशन के बाद क्या दे दिया है? SI यूनिट. मैग्नेटिक फील्ड को हम मेजर करते हैं टेस्ला में. बहुत सारे यंगस्टर्स इस वर्ड से फैसिनेटेड है. टेस्ला. यू नो व्हाट इज टेस्ला? तुम्हें पता है टेस्ला क्या है? अगर टेस्ला तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें अभी गूगल करके देखना चाहिए. ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आज की यू कैन से जनरेशन में बहुत फेमस है, और एक बहुत फेमस नाम है जो इस टेस्ला से रिलेटेड. सो जब तुम इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लोगे टेस्ला के बारे में, टेस्ला क्या है, टेस्ला किसके नाम के ऊपर पड़ा है, कौन था वो साइंटिस्ट जिसका नाम था टेस्ला, ठीक, उसने क्या डिस्कवरीज की है, और अभी फिलहाल कौन सा ऐसा इनोवेटर है जिसने टेस्ला नाम को अडॉप्ट किया है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो और मुझे प्लीज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बताओ कि हाँ सर मैंने टेस्ला के बारे में ये पढ़ा है और ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली है. मैं बहुत खुश हो जाऊंगा रियली. अगर तुम ये सुन रहे हो और तुमने ये सारी चीजें थोड़ी सी रिसर्च की तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा. इसीलिए ये इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं तुम कितने मार्क्स लाते हो, लेकिन ये तुम्हारी अवेयरनेस को दिखाता है. एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू काउंट इन टुमारोज वर्ल्ड. जब ये कोविड और ये सब जो हम लोग डिजास्टर से गुजर रहे हैं ये खत्म होगा ना, तब तुम्हारी कॉन्शियसनेस और तुम्हारी अवेयरनेस काम आएगी. और यही अवेयरनेस को मैं थोड़ी सी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे. याद रखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या मार्क्स आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मैटर नहीं है. तुम एक एम्प्लॉय बन के रह जाओगे अगर मार्क्स के पीछे भागोगे. मैं नहीं चाहता मेरा एक भी स्टूडेंट एम्प्लॉय बने. एम्प्लॉय इज नॉट अ बैड वर्ड. हमारे बहुत सारे हमारे पेरेंट्स एम्प्लॉयज हैं. एम्प्लॉय इज नॉट बैड, बट इफ यू आर एन एम्प्लॉय बट ऑल्सो एन इनोवेटर, then you are no more just an employee. You remember? And I just want you to grow up in the capacity that you don't remain just an employee for a company. In future, जब भी तुम कुछ सीखो तो किसी कंपनी के जस्ट एम्प्लॉय बन के मत रह जाना, बिकॉज जस्ट एम्प्लॉय इज इक्वल टू जस्ट स्लेव, जो अपने लिए काम नहीं करता, वो सर्वाइवल के लिए काम करता है. मैं चाहता हूं तुम अपने लिए काम करो. मैं चाहता हूं तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, जिससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिले. और तुम ये तब कर सकते हो जब तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होगा पढ़ाई के लिए एज वेल एज नए नए कॉन्सेप्ट्स के लिए. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, टेस्ला के बारे में और जानकारी मुझे दो, आई विल बी वेरी हैप्पी. और मैं तुम्हें ग्रुप में अप्रिशिएट करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. जो भी मुझे देगा, सब लोग एक इंफॉर्मेशन देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सब लोग नई नई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. एक काम करो, सब लोग एक काम करो, टेस्ला के बारे में एक एक सेंटेंस मुझे बताओ, नया नया सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस रिपीट नहीं होना चाहिए. इन दी एंड हमारे पास ऐसी 20-25 लाइंस हो जानी चाहिए मिक्स, ठीक है, जो टेस्ला को डिफाइन करती है. हमारे पास ऐसी लाइंस हो जानी चाहिए जो टेस्ला को डिफाइन करती है. तो टेस्ला के ऊपर इतनी सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ओरिजिनल साइंटिस्ट के ऊपर हो या फिर अभी का जो इनोवेटर है जिसने टेस्ला वर्ड को अडॉप्ट किया है, और जिसके मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जिसका एक प्रोडक्ट है, जिसका प्रोडक्ट का नाम उसने इस टेस्ला के नाम पे रखा है, उस इनोवेटर के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन हो तो आप प्लीज शेयर करो मेरे साथ. एक सेंटेंस में शेयर करो, आई विल बी वेरी हैप्पी. और मुझे ये भी पता चलेगा वीडियो पूरा कौन देख रहा है. बाकी जो आगे स्किप कर करके मेरी बातें नहीं सुन रहे और आगे स्किप कर करके देख रहे हैं, उनको मैं क्या बोलूं, वो मेरे को फंडिंग दे रहे हैं, अभी फीस दे रहे हैं मुझे, बस कोई फायदा नहीं है. ठीक है, चलो. तो टेस्ला का मीनिंग क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड का एक ऐसा यूनिट है और इसका मीनिंग है 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर. सो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर और वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका दूसरा यूनिट है. ठीक है, ये सब इक्वल टू टेस्ला है. तो अगर तुम मुझे पूछो सर 1 टेस्ला क्या है, तो मैं बोलूंगा 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर.
टेस्ला इज वेरी बिग यूनिट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस. सो सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक यूनिट मैं तुम्हें देता हूं, गॉस, अल्टीमेट यूनिट गॉस. और गॉस भी एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट का नाम है. इसके बारे में भी कुछ बता सकते हो तुम तो बहुत मजा आएगा. गॉस, GAUSS. साइंटिस्ट कौन थे, ये तो बहुत इतना अच्छा क्वेश्चन है. जैसे मैंने तुम्हें पहले ही ऑर्स्टेड के बारे में बताया, हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. ऑर्स्टेड डेनिश साइंटिस्ट थे. इनकी लाइफ के बारे में भी तुमको पढ़ोगे ना, इतना इंस्पायरिंग और इतना इंटरेस्टिंग होता है. इनके ऊपर हॉलीवुड में मूवीज भी बनती है. मैं कभी फ्री टाइम में तुम्हें बताऊंगा कौन सी मूवीज तुम्हें देखनी चाहिए. लेकिन हॉलीवुड में इनके ऊपर मूवीज भी बनती है, और ये इतनी ब्यूटीफुल होती है मूवीज कि तुम्हें पता चलेगा साइंटिस्ट का लाइफ ऐसा बोरिंग नहीं होता है. दे हैव इंटरेस्टिंग लाइफ, अमेजिंग लाइफ. ठीक है, निकोला टेस्ला के ऊपर भी मूवी बनी है, कभी बताऊंगा मैं तुम्हें बाद में. सो 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस. काफी हमने टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया, बट अच्छी बात है. केस 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्क्यूलर वायर. चलो, एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट आ गया हमारे सामने. अब तुम्हें याद है कि अभी हमने एक वायर को लिया था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, और उसको हमने कार्डबोर्ड में से पास किया. उसका तुम्हें ये दिखाता हूँ, ये रहा फिगर. ठीक है, अब हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है उसी वायर और उसी कार्डबोर्ड को लेके करना है, लेकिन अब कार्डबोर्ड का शेप होना चाहिए रेक्टेंगुलर, और वायर का शेप करना है तुम्हें सर्कुलर. मतलब वायर को एक होल से नहीं, 2 होल से पास करना है. वायर को इस होल से अंदर डालना है, और फिर ऐसे सर्कुलर लूप बना के दूसरा होल जो थोड़ा सा दूर है उससे बाहर निकालना है. और ये जो वायर के 2 एंड दिख रहे हैं तुम्हें, ये दोनों एंड में तुम्हें बैटरी लगा देनी. अब बैटरी लगाओगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा सर्किट से, और ये वायर पूरा सर्किट की तरह एक्ट करेगा. तो अब क्या होगा कि नाउ देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड नियर पॉइंट P, at which point P on the cardboard, through which the wire is entering the cardboard, and there will be a magnetic field near the point Q, through which the wire is leaving the cardboard. वो दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगा. अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होगा, तो इसका शेप तो सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल से पता लगा सकते हो. इफ यू इमेजिन टू होल्ड अ वायर एट पॉइंट P such that the direction of your thumb points in the direction of current carrying conductor, then the fingers in which your the fingers encircle the conduction, the fingers which encircle the conduction बोल रहा हूँ मैं. The fingers which encircle the conductor shows the direction of magnetic field. ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो फिंगर्स कौन से डायरेक्शन में एनसर्कल हो रही है. फिंगर्स का डायरेक्शन ऑफ एनसर्कल ये है, ये वाला जो यहाँ पे दिखाया है, ऐसे करके एनसर्कल हो रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही है. ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें हैंड को ऐसे रखना पड़ेगा, थंब नीचे की तरफ पॉइंट होगा क्योंकि करंट नीचे जा रहा है. एंड द फिंगर्स विच एनसर्कल द कंडक्टर दे पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. किसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट. ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अगर तुम इसको देखो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे कैसा है, क्लॉकवाइज. ठीक है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स है. बट अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम्हें ये जो पहले वाला केस था जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, उससे ये केस कैसे डिफरेंट है. तो डिफरेंट ऐसे है कि मुझे एक स्ट्रॉन्गर और लार्जर मैग्नेटिक फील्ड मिला है. जस्ट बाय चेंजिंग द शेप ऑफ दिस वायर आई गॉट अ लार्जर मैग्नेटिक फील्ड. मैंने सिर्फ वायर का शेप चेंज कर लिया और मुझे एक लार्जर मैग्नेटिक फील्ड मिला. ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से जा रहा है और कहां से निकल रहा है, ये जरा ध्यान से देखो. ये मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम देखोगे, इट इज इन द शेप ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नियर द वायर P and Q. But in between those two wires, this magnetic field is in the form of straight parallel lines. यहाँ पे अगर मिडल में देखोगे तो पैरेलल लाइंस के शेप में है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है. इट इज गोइंग इनवर्ड्स फ्रॉम आउटवर्ड. ऐसा इसका एक डायरेक्शन हमें दिख रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसका पॉइंटिंग देखो कहाँ पे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये देखो कहाँ पॉइंट कर रही है. तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, बाहर से अंदर की तरफ. तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक और एक पिक्यूलियर मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल. कॉइल बोलते हैं इसको.
क्योंकि सर्कुलर है इसलिए इसको वर्ड हमने एक दिया है कॉइल। ठीक है, कॉइल हमेशा सर्कुलर होती है और हमेशा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम कॉइल बोलेंगे। तो कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका शेप पेक्यूलियर होता है और हमेशा याद रखना कि सेंटर ऑफ द कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पोर्शन में, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। देखो यहां भी देखो, ये कॉइल को थोड़ा सा ऐसा वर्टिकल सेक्शन में दिखाया है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना ब्यूटीफुली स्केच किया है वो लोग ने, राइट। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नियर द वायर, जो मैंने तुम्हें बताया। इफ यू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वायर नियर पॉइंट P, then it can be treated as a straight wire. We know that for a straight current carrying wire, the magnetic field lines are concentric circles. The same logic holds good for point Q and in fact for all points on the wire. मतलब वायर के नजदीक, ये पॉइंट के नजदीक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसा है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जैसा है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसा है। As we move away from the wire to the center, the concentric circles of magnetic field lines of force become bigger and bigger, and at the center of the circle, center of the circle मतलब कौन से सर्कल की बात कर रहे हैं, ये जो सर्कुलर लूप है ना, ये जो कॉइल है उसके सेंटर की बात कर रहे हैं। उसके सेंटर में क्या होगा, उसके सेंटर में वो लोग बोल रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल। Imagine to hold a circular current carrying wire in such a way that the curl of the fingers is in the direction of current. Then the direction of thumb gives the direction of magnetic field at the center of the circular wire. Do not use your left hand while using above rule. ये याद रखना। Every segment of the wire creates magnetic field within the loop, which is in the same direction, either inwards or outwards of the loop, depending upon the direction of current. So अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखो ये करंट का डायरेक्शन देखो, ये रेड में करंट का डायरेक्शन दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, तुम ये क्या लग रहा है तुम्हें, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है। जब भी अगर तुम वायर को ऑब्जर्व कर रहे हो और करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होगा। याद रखना है, यहाँ पे मैं दो डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट which is clockwise. Current I is clockwise. अगर तुम लूप को देख रहे हो, on observing the loop, if the direction of current is clockwise, इसको नोट कर लो, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लो। On observing the loop, if the direction of current is clockwise, then the direction of magnetic field B magnetic field याद रखना, ठीक है, the direction of magnetic field is inward. The direction of magnetic field is inward. But on the other hand, on observing the loop, if the direction of current is anti-clockwise, anti-clockwise मतलब कैसा है, इसका उल्टा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉइल बनाऊं तुम्हारे लिए, रुको बनाता हूं मैं एक कॉइल बनाता हूं, ठीक है, एक कॉइल बनाता हूं मैं तुम्हारे लिए। ये कॉइल है और कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसा, ये कैसा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो ऐसा होगा, ये अंदर ये लाइंस है जो बाहर से ऐसे अंदर की तरफ मैंने ड्रॉ की है, बट इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा आउटवर्ड, ये होगा आउटवर्ड, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर आ रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। If on observing the loop or circular coil, the direction of current in the coil is anti-clockwise, then the direction of magnetic field coming or you can say through the coil will be outward. तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने दो बताई है, इसी के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। The magnetic field is maximum at the center and decreases along the axis of the loop. सेंटर ऑफ द लूप पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और एक्सिस के अलोंग वो डिक्रीज होता जाएगा। अब इसकी एक्सिस कौन सी है, अगर इसकी एक्सिस ये लूप की मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे एक एक्सिस हो सकती है,
ठीक है, सेंटर पे, एक्सिस के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। मतलब वायर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होगा, सही है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे फिर से ये बता सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कितना होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। The center, the strength of magnetic field depends on the radius of the loop. जितनी बड़ी होगी रेडियस ऑफ द लूप, सेंटर पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतना छोटा, उतना कम होगा। एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल। मतलब कितने टर्न्स है ये भी मैटर करता है। जैसे यहाँ पे एक ही टर्न है, अगर मैं वायर को बार बार ऐसे टर्न करूं इसमें, मतलब इस कॉइल में सिर्फ एक लूप ना हो, बहुत सारे लूप्स हो, ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल। सो इन ऑल, इफ यू कंबाइन ऑल द फैक्टर्स, द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड द रेडियस ऑफ द लूप। ठीक है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, क्या हो गया भाई, रुक जा। Cool, we have got it. So next topic है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब तुम बोलोगे सर नया नया वर्ड मेरे पे फेंक के मार रहे हैं, क्या है ये सोलेनॉइड, क्या है? सोलेनॉइड इज नथिंग बट अ लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड मेटालिक वायर। क्या क्या है इसमें देखो, लॉन्ग, सोलेनॉइड लॉन्ग वायर से बना होता है, टाइटली वाउंड, टाइटली वाउंड मतलब ये वायर किसी के ऊपर वाउंड होता है और टाइटली वाउंड होता है, लूजली वाउंड नहीं, टाइटली वाउंड। हेलिकल कॉइल, हेलिकल मतलब, हेलिकल पता है क्या होता है? हेलिकल शेप ये होता है, देखो ये हेलिकल शेप है, ये सर्कुलर नहीं है, ये हेलिकल है, क्योंकि ऐसा स्पाइरल बन रहा है, स्पाइरल। स्पाइरल शेप या हेलिकल शेप एक शेप होता है, बहुत ही मैथमेटिकली इतना ब्यूटीफुल शेप है ये। मैथमेटिकली देखोगे तो स्प्रिंग, स्प्रिंग का शेप देखा है, वो भी हेलिकल होता है। और ये किससे बना होता है? इंसुलेटेड मेटालिक वायर से। किससे बना होता है सोलेनॉइड? इंसुलेटेड मेटालिक वायर से। ठीक है, तो लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड मेटालिक वायर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। अच्छा, इस पे इसको कॉपर वायर से बनाते हैं, और कॉपर वायर को इस किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग ऐसे टाइटली वाउंड कर सकते हैं हेलिकल कॉइल के शेप में, तो सोलेनॉइड बन जाएगा। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि एक कॉपर वायर को ले लो और कॉपर वायर को एक पेंसिल के ऊपर वाइंड कर दो, तो सोलेनॉइड बन जाएगा। लेकिन तुम्हें एक्चुअली अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड बनाना है, ठीक है, तो तुम क्या करो पता है, मेरी बात मानो, घर पे मत करना ये सब, ठीक है? घर पे करोगे शॉक वॉक लगेगा, मरवर जाओगे, मेरा नाम आएगा। प्लीज घर पे मत करना ये सब, डोंट ट्राई दिस एट होम। तो एक सॉफ्ट आयन कोर ले लो, सॉफ्ट आयन कोर। तुम बोलोगे सॉफ्ट आयन कोर क्या होता है? ये आयन सॉफ्ट होता है क्या? ऐसा मतलब च्युइंगम जैसा सॉफ्ट रहता है? नहीं, सॉफ्ट आयन एक आयन का टाइप है, ठीक है। इट इज अ यू कैन से particular ore of iron which gives you soft iron. Soft iron is very easy to cut, ठीक है। तो सॉफ्ट आयन से मशीन्स के पार्ट बनाते हैं हम लोग, और कुछ टूल्स भी बनाते हैं। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर सॉफ्ट आयन के क्या यूजेस है, गूगल करके देख लो यार, ठीक है, ये काम आएगा। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी भी दे रहा हूँ उसकी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हें निकालनी है तो यू आर फ्री टू सर्च ऑनलाइन, कुछ काम की चीज तो ढूंढोगे ऑनलाइन, ठीक है। तो सॉफ्ट आयन कोर ले लो, आयन का एक टाइप है सॉफ्ट आयन, और उसके ऊपर कॉपर का इंसुलेटेड वायर को वाइंड कर दो। तो एक कॉपर का वायर ले लो और इसके ऊपर ऐसे, मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ, ऐसे वाइंड करते जाओ, टाइटली वाइंड करना। ठीक है, ये पूरा ऐसे वाइंड करते गए तुम, और वाइंड करके तुम्हारे पास एक बन गया प्रॉपर सोलेनॉइड। प्रॉपर सोलेनॉइड है ये, ठीक है। इस सोलेनॉइड को हमें पढ़ना है। अब ये सोलेनॉइड को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग एक मोमेंट के लिए। तो सोलेनॉइड बना किससे है? सोलेनॉइड ऐसी हेलिकल वाइंडिंग से बना है। अब मैं बोलता हूं कि सोलेनॉइड की हेलिकल वाइंडिंग्स तो है बहुत सारी,
लेकिन इसमें एक वाइंडिंग को अगर हम देखेंगे तो ये कैसी दिखती है, तो ये कुछ ऐसी दिखती है, एक वाइंडिंग। अच्छा, इसको और सिंपल देखना है तो एक वाइंडिंग ऐसी दिखती है। ठीक है, ये कैसा शेप है? दिस इज नथिंग बट योर सर्कुलर कॉइल, जो अभी हमने पढ़ा यहां पे। ये तो हमारे सर्कुलर कॉइल जैसा दिखता है। ये सर्कुलर कॉइल is basically nothing but one single part of this solenoid। अगर मैं इसी कार्डबोर्ड के ऊपर बार बार ऐसे छोटे छोटे होल्स बना के ये वायर को यहां से यहां से अंदर डालूं, यहां से बाहर निकालूं, फिर यहां से अंदर डालूं और यहां से बाहर निकालूं, ऐसे बहुत सारे अगर टर्न्स बना लूं इसी कार्डबोर्ड पे, तो मेरे पास सर्कुलर कॉइल्स की एक पूरी लाइन बन जाएगी। एंड ये भी तो सोलेनॉइड ही है। Solenoid is nothing but many circular coils kept one after another, but in a specific way such that it is wound on soft iron core and it is made up of insulated metallic wire and it is tightly wound and it is very very long। तो उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। मतलब सोलेनॉइड किससे बना है? बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स से। ठीक है, तो बहुत सारी सर्कुलर कॉइल क्या करेगी? एक सर्कुलर कॉइल का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो हमने यहां पे स्टडी किया। कैसा था मैग्नेटिक फील्ड? इट इज कॉन्सेंट्रिक नियर द वायर्स एंड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म नियर द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। इट इज स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल एंड डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस along the axis increases। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ये सेम चीजें यहां पे भी एप्लीकेबल होगी, किसमें? सोलेनॉइड में। तो सोलेनॉइड का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था फिजिक्स में, बहुत बड़ी डिस्कवरी। क्योंकि इसका जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नोट किया तो द मैग्नेटिक फील्ड लुक्ड एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। ये बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक फील्ड था, जिसमें एक एंड, सोलेनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा था और सोलेनॉइड का दूसरा एंड साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा था। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो एंड जो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा था वहां से बाहर निकल रही थी, और सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो एंड जो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा था वहां से अंदर घुस रही थी। सो दिस सोलेनॉइड इज नथिंग बट योर बार मैग्नेट, बट इट इज नॉट एनी ऑर्डिनरी बार मैग्नेट। It is a special type of bar magnet which works only when electric current is passed through this circular coil of the solenoid। जब भी हम सोलेनॉइड की कॉइल्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सोलेनॉइड की, ये स्पेशल फील्ड लाइंस, स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो बार मैग्नेट को रिजेंबल करती है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ पोल डायरेक्ट होती है बाहर, मैग्नेटिक सोलेनॉइड के बाहर, और सोलेनॉइड के अंदर साउथ टू नॉर्थ पोल डायरेक्ट होती है। और तुम्हारे सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी सोलेनॉइड के बारे में। अब सोलेनॉइड का साउथ और नॉर्थ पोल कैसे हम लोग पता लगाएंगे? तो बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं सोलेनॉइड का नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में। प्लीज समझ लो इसको। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि पहले तो हम करंट का डायरेक्शन पता लगाएं। तो सपोज करंट यहां से अंदर घुस रहा है, एक मिनट, इस फिगर पे फोकस करो। करंट यहां से अंदर जा रहा है, यहां से अंदर जाके यहां से जाके यहां से नीचे जाएगा और फिर यहां से घूम के यहां से ऊपर आएगा। अगर तुम यहां से इमेजिन करो इसको, इस कॉइल को देखने का, तो तुम्हें करंट का डायरेक्शन कैसा दिखेगा? तुम इस साइड से देख रहे हो, लेफ्ट साइड से, तो जस्ट इमेजिन करो करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, मतलब करंट तुम्हें दिखेगा ऐसा। करंट ऐसा लूप में ऊपर जा रहा है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से करंट नीचे आ रहा है। दिस इज हाउ द करंट विल लुक लाइक फ्लोइंग इफ यू लुक एट द कॉइल फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो कॉइल का जो ये वाला एंड है जहां पे करंट का डायरेक्शन तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा है, वो जो एंड है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इन विच if you look at it directly and the direction of current
appears to be flowing in clockwise direction, then the direction of the magnetic pole's direction of that particular end of solenoid is nothing but south pole. ठीक है, यहां पे अगर तुम देखो साउथ का एस बनाया हुआ है और एस का जो एंड्स है उसके डायरेक्शन देखो करंट के डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो ये याद रखने का एक तरीका है, साउथ के साउथ का जो सिंबल है वो है एस, और एस के जो एंड्स है, एस लेटर के जो एंड्स है जो मैंने रेड एरो से मार्क किए हुए हैं, वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। मतलब वो एंड सोलेनॉइड का जहां पे, जिसको देखने से अगर हमें समझ में आता है कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वह फ्लो कर रहा है, तो वो एंड क्या होगा, वो एंड होगा साउथ पोल, किसका, सोलेनॉइड का। ठीक है, अगर मैं यहां से देखता हूं तो यहां पे क्या हो रहा है, तो ऐसे करंट फ्लो करते करते यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है मतलब इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे जा रहा है ना, तभी तो ऐसे बाहर निकलेगा। तो अगर मैं यहां से देखता हूं, यहां से, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, इमेजिन करो तुम ये साइड से देख रहे हो और करंट का डायरेक्शन क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तुम्हें, तो तुम नॉर्थ पोल को देख रहे हो, और नॉर्थ पोल के एन के एंड्स को देखो, वो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए दिखेंगे। मतलब on looking at the side of the solenoid, on the edge of the solenoid, if you observe the direction of current to be flowing in anti-clockwise direction, then you are looking at the north pole of the solenoid, then you are looking at the north pole of the solenoid. ठीक है, याद रखना है इसको। मैंने शायद तुम्हें उल्टा बोला है, क्योंकि ये डायग्राम कुछ ऐसा है, अगर तुम नीचे वाले देखोगे डायग्राम में तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, मतलब ये नॉर्थ पोल है, आई एम सॉरी, आई विल टेक माई वर्ड्स बैक। और ये यहाँ से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज है, मतलब ये साउथ पोल होना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो क्या मैं फिर से रिकॉर्ड करूँ ये सब, नहीं ना, समझ में आ गया ना तुमको, मैं फिर से बताता हूँ, फिर से बता देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस, ऐसे कंफ्यूजन होता है बिकॉज ये डायग्राम ही ऐसा है। ठीक है, ऑन लुकिंग at the end of the solenoid, if the direction of current appears to be flowing in anti-clockwise direction, then that end of the solenoid acts as a north pole. And on looking at the end of the solenoid, if the direction of the current appears to be flowing in clockwise direction, then that end of the solenoid appears to be as a south pole. ठीक है, तो पोल, ये जो हमने रूल पढ़ा है इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्या बोलते हैं इसको, क्लॉक फेस रूल। अच्छा, ये क्लॉक फेस रूल के ऊपर और एक मैं वीडियो डालूंगा, मेरा वीडियो नहीं, यूट्यूब पे एक प्रॉपर, मतलब जिसने एक्सपेरिमेंट करके बताया है उसका वीडियो डालूंगा। ये तो थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे इसको, इंफॉर्मेटिव वीडियो है मेरे वीडियोस, बट कुछ एक्सपेरिमेंटेटिव वीडियोस भी है जो मेरे पास अगर प्रॉपर कैमरा एंड सेटअप रहेगा तो मैं एक्सपेरिमेंटेटिव वीडियोस भी बनाना चाहूंगा तुम लोगों के लिए। बट फिलहाल के लिए आई एम गोइंग टू फोकस ऑन ओनली इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जो तुम्हारी थियरी पार्ट क्लियर करें। तो एक्सपेरिमेंटेटिव वीडियोस के लिए मैं अलग से एक लिंक दूंगा, कोई अच्छा यूट्यूब पे जो कंटेंट बनाएगा उसका मैं वीडियोस डालूंगा, तो वो चेक करना प्लीज। आई थिंक अभी मैंने डाल दिया होगा क्योंकि ये लिंक तुम्हारे ग्रुप में ऑलरेडी है। ठीक है, तो अभी चेक कर लेना एक बार, ये पार्ट देखने के बाद चेक करना अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मुझे सोलेनॉइड के अंदर चेक करनी है तो वो डिपेंड करेगी करंट पे, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ याद रखना, मतलब कितने टर्न्स है, जितने ज्यादा टर्न्स उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, और अगर दोनों को कंबाइन करें तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द करंट। अच्छा, ये सर्कुलर सोलेनॉइड भी एक होता है जिसको टोरॉइड बोलते हैं, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता। ठीक है, और भी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है जिसमें मैं तुम्हें अभी कुछ जिसके बारे में डिस्कस कर सकूं। बट अब ये जो पॉइंट आगे आने वाला है, ये जो टॉपिक है ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट।
So what is electromagnet? A long, tightly wound helical coil of metallic wire containing soft iron in its core is called an electromagnet. तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये जो सॉफ्ट आयन कोर वाला टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल है इंसुलेटेड मेटालिक कॉपर वायर का, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा सॉफ्ट आयन कोर पे कॉपर वायर को वाइंड करके ही बनाया जाता है. ठीक है, और ये कॉपर वायर में अगर बैटरी और स्विच कनेक्ट करके उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज मिल सकती है. तो सॉफ्ट आयन कोर का बेनिफिट क्या है? सॉफ्ट आयन कोर तुरंतली अपने आप को तुरंतली बोला मैंने, तुरंतली, वाह, इंस्टेंटली अपने आप को मैग्नेट में कन्वर्ट कर लेता है. सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉफ्ट आयन कोर adds up with the magnetic field of solenoid and it gives a very strong magnetic field as compared to a normal solenoid. That's why we must use a soft iron core. The magnetic fields at the pole now becomes 1000 times more. The pattern of the electric magnetic field of an electromagnet is the same as that of a solenoid or a bar magnet. But इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब भी मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करूंगा तभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा. एज सुन एज आई स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रोमैग्नेट क्विकली डीमैग्नेटाइजेस. ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है. इसका यूज क्या है? इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. बिगर ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, जहाँ पे जंक यार्ड्स होते हैं ना, पुरानी कार्स को उठाने के लिए, आयन ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है. कभी कभी आईज में आयन के पीसेस या बॉडी में आयन के पीसेस चले जाते हैं, शार्पनेल्स बोलते हैं उसको निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज डॉक्टर्स करते हैं. ठीक है, एक आयन नेल से भी तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो. ठीक है, इंसुलेटेड वायर से. घर पे प्लीज मत करना, बैटरी अगर यूज करो तो छोटी बैटरी से करना, नहीं तो अगर तुम कुछ भी हो गया तुम्हें, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. ये सारी फिजिक्स की चीजें हैं, दे आर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बट यू शुड नॉट ट्राई देम एट होम without any you can say supervision. ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के बारे में यहाँ पे बात किया है. परमानेंट मैग्नेट बेसिकली स्टील का बना होता है. बेसिकली इट्स ओर ऑफ आयन मैग्नेटाइट जिससे बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट. कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट, टंगस्टन स्टील. आल्निको एक अलॉय है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट एंड आयन का. निपर मैग, ये सारे भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. परमानेंट मैग्नेट के बहुत सारे यूजेस हैं, माइक्रोफोन्स में, लाउड स्पीकर्स में, एमीटर्स, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स. ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में 3 मेजर डिफरेंसेस है, याद रख लो इसको. इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स एज अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट एंड लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ. इट मींस दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट. Permanent magnet is not dependent on current for its magnetism. Strength of electromagnet can be changed by changing magnitude of current. अगर ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, बट परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ हम चेंज नहीं कर सकते. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोलैरिटी है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो भी चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट. बट परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते. ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है जो ये लोग ने नहीं बताया. वेरी पावरफुल मैग्नेट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज वीक एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, कुछ एडवांस कंट्रीज में पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ट्रेन्स को चलाने के लिए, हाई स्पीड ट्रेन्स को चलाने के लिए यूज होते हैं. उनको मैगलेव ट्रेन्स बोलते हैं. प्लीज इसके ऊपर भी तुम थोड़ा गूगल करके रिसर्च करो. ये फ्लोट करती हुई ट्रेन गाइडवे पे फ्लोट करती है, तो इनके फ्रिक्शन बहुत कम होता है और इनकी स्पीड अराउंड 603 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड की गई है. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है. तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट तो बहुत छोटा था, बट हम समझ सकते हैं कि एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का. अब हमें एप्लीकेशंस पढ़ने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के. सो नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. फर्स्ट पार्ट थोड़ा वीडियो लंबा बन गया है. सेकेंड पार्ट का जो वीडियो है इट वोंट बी, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके आगे बनाऊंगा. आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस नाउ एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इसके बाद हम लोग मैथ्स पे जाएंगे. सो 2 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री के हमारे हो जाएंगे एंड फिर हम मैथ्स पे फोकस करेंगे वापस से, राइट. सो आई थिंक वी आर गोइंग गुड इन सिलेबस टर्म्स. हो सकता है कुछ स्कूल्स में मैथ्स के अलग अलग चैप्टर ले रहे हो,
फिजिक्स के और केमिस्ट्री के तो यही 2 चैप्टर लेंगे, बट मैथ्स के अलग अलग चैप्टर ले रहे होंगे। हम किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं स्पीड में, कोई भी स्कूल से मेरी कोई कंपटीशन नहीं है, उनको आगे भागने दो। हम आराम से सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, टाइम पे कंप्लीट करेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।